Good morning everyone. Today we are going to discuss about the remaining accounting terms of class 11th. Without wasting any time, we are starting our important term concept. Now, assets and the other basic terms we have done, and today we are going to start with the term liabilities. Let's take an example. Raj bought 50,000 products for rupees 5 lakhs from ABC Limited on credit basis. What does it mean? It means that Raj has to pay that amount to ABC Limited for those 50,000 products. Now it's a liability on the Raj to pay that amount. It's a burden on the Raj to pay that amount to ABC Limited. In the same way, if we have a business and we purchased some raw material for rupees 10 lakhs and 6,000 we given as a cash and 4,000 are still remaining. That means liability we have on that particular firm for rupees 4 lakhs. Why? Because we have to pay that amount. The liability means amount payable by the business for the credit purchases, you can say. It's a burden on us. It's a burden on business basically. जो चुकाना ही चुकाना है. बिना क्रेडिट परचेज की पेमेंट किए हुए हम सप्लायर के साथ नेक्स्ट डील नहीं कर सकते, है ना. तो वी हैव टू पे द अमाउंट टू द सप्लायर. Liability can be internal liability or external liability also. Now you will say, what is internal liability? Liability towards owners of the business is termed as internal liability. And on the other hand, liability towards the outsiders other than the owner or the proprietor is termed as external liability. If we are saying that creditors, bank overdraft, long-term borrowings, these all are external liability. Now you will say, what is creditor and all? This also we'll discuss. But if we had taken loan from the bank, the loan is outside the organization, yes. So that will be your external liability. Okay. We are coming on the classification of liabilities. Non-current liability and current liability. I think some concept आपके mind में आ रहे होंगे relate when we are reading this term current liability and non-current liability, because we have done current assets or non-current assets. Yes. So if we are talking about the non-current liability, so those liability which is payable after a period of more than a year from the end of the accounting period, जिसको हमें एक साल से ज़्यादा समय तक जिसकी पेमेंट करनी है. जैसे मैंने बैंक से लोन लिया है फॉर द 10 ईयर्स, तो दैट विल बी द नॉन करेंट लाइबिलिटी फॉर मी, क्योंकि मैं उसकी पेमेंट 10 ईयर्स तक करूँगी. ऑन द अदर हैंड, करंट लाइबिलिटी विच इज़ पेबल विद इन 12 मंथ्स, विद इन अ ईयर. आप जिन लाइबिलिटीज़ की जो पेमेंट आपको करनी है आप कर रहे हैं, वो आपकी करंट लाइबिलिटीज़ कहलाती है. जैसे मैंने बैंक से शॉर्ट टर्म लोन लिया है. शॉर्ट टर्म लोन मतलब फॉर अ ईयर या विद इन अ ईयर जिसकी पेमेंट मुझे करनी है. दैट ऑल विल कम अंडर द शॉर्ट टर्म लोन. सम मोर एग्जाम्पल वी हैव क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल्स, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस. आपको याद होगा कि व्हेन वी वर डिस्कसिंग अबाउट द डेटर्स, we discussed about the creditors also and bills payables also, but we'll repeat it once again, don't worry for that. So here if we are paying our loan within a year, that will comes under the short term loan or the current liability. Okay,
Now we are coming on the next slide. Trade payables. It is the amount payable for the purchases of goods and services taken in an ordinary course of business. It is the sum of creditors and bills payable. तो आपका ट्रेड पेबल क्या है? वो अमाउंट है जो आपको पे करना है फॉर द क्रेडिट परचेजेस. और ट्रेड पेबल में आप दो मेन टर्म्स को इंक्लूड करते हो, दैट इज़ योर क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल. नाउ वी कैन से इट लाइक दैट ओनली, इट इज़ द अमाउंट ड्यू टू द सेलर of goods by the enterprise. Okay, that amount which is due to the seller, that is known as the trade payable. It includes two terms basically. First we have creditors. Creditor is a person or an enterprise to whom an enterprise owes amount against credit purchases of goods. अगर मेरी फर्म ने अगर कुछ क्रेडिट परचेजेस की हैं, उधार लिया है, तो जो सप्लायर है वो मेरे लिए क्रेडिटर माना जाएगा. Why? That supplier is a creditor for me, liability for me, because I have to pay that amount to the creditor. It's a burden on me, and that person to whom I have to pay that amount, or to whom an enterprise has to pay that amount, that is known as the creditor. That person is known, that enterprise will be known as the creditor. Next we have bills payable. Bills payable means a bills of exchange accepted by the person or enterprise, the amount of which will be payable on the specified date. आप सबको पता होगा बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या होता है. लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था. इट इज़ एन रिटर्न एग्रीमेंट जो क्रेडिट परचेजेस के टाइम बनता है, विच स्टेटेड दैट ऑल द टर्म्स एंड कंडीशंस जो आपकी ऑन द टाइम ऑफ परचेज हुई है, कि हाउ मच इंटरेस्ट यू आर गोइंग टू पे ऑन दैट पर्टिकुलर परचेजेस, और इंटरेस्ट, और यू कैन से इन हाउ मेनी मंथ्स यू हैव टू पे दैट अमाउंट एंड ऑल. दैट ऑल टर्म्स एंड कंडीशन विल बी देयर इन योर written document, and that document is known as the bills of exchange. Now if I am accepting to pay that amount, why I am accepting it? Because मैंने credit purchases की हैं. तो मैं अपने सप्लायर से मेरे सप्लायर ने जो बिल ड्रॉ किया है, दैट मीन्स जो बिल बनाया है, जो रिटर्न डॉक्यूमेंट बनाया है, फॉर द रिटर्न एग्रीमेंट जो बनाया है, फॉर द प्रूफ ऑफ द ट्रांजेक्शन, मैं उसको लेंगी और एक्सेप्ट करूँगी. दैट मीन्स बिल्स पेबल, वो जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज है विच आई एम एक्सेप्टिंग कि ओके आई एम गोइंग टू पे दैट पर्टिकुलर अमाउंट, वो बिल मेरे लिए क्या कहलाया जाएगा? बिल्स पेबल. दैट बिल विच आई हैव टू पे टू माई क्रेडिटर. तो in that way creditors and bills payable both are liabilities and both will come under the trade payable. I hope it is clear to you now. If you want to note it down, you can pause the video and you can note it down. Okay. Next we are coming on the next term, that is bad debts. Okay. मैंने कुछ एग्जाम्पल के थ्रू ही समझते हैं इसको. मैंने कुछ मटेरियल या फिर यू कैन से मेरी एक एंटरप्राइज है फैब्रिक की, और मैंने जो है फैब्रिक क्रेडिट में सेल किया था. हमारी ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी है कि हम क्रेडिट में सेल कर सकते हैं, तो क्रेडिट में मैंने सेल किया. और जो मेरे डेटर्स थे, दैट मीन्स जिनसे मुझे पैसा लेना था, वो इंसॉल्वेंट हो गए. इंसॉल्वेंट मतलब दिवालिया हो गए या बैंकरप्ट हो गए, या उनको बहुत ज़्यादा लॉसेस हो गया, तो किसी कारण की वजह से वो मेरा डेट वापस नहीं कर पाए. दैट मीन्स वो पैसा जो मुझे मिलना था फ्रॉम माई डेटर्स, वो मुझे नहीं मिला, वो इररिकवरेबल रहा. अब मैं उनसे वो रिकवर नहीं कर सकती हूँ. ठीक है, तो दैट विल कम अंडर दी बैड डेट्स. वो पैसा जो डूब गया, वो पैसा जो मेरे डेटर्स ने मुझे देना था, वो अब नहीं दे पा रहे हैं, वो पैसा डूब गया, मुझे कंप्लीट लॉस हो गया, तो दैट विल कम अंडर दी बैड डेट्स. ओके. ऑन द अदर हैंड अगर मैं बोलूँ व्हाट विल बी द गुड डेट्स, आई थिंक आप इसको कोरिलेट कर पाएंगे. बैड डेट्स जो पैसा डूब गया, वो डेट्स जो मुझे मिल गया है ना, रिटर्न हो गया टाइमली, दैट विल कम्स अंडर दी गुड डेट्स. आई थिंक इट इज़ क्लियर टू यू, है ना. ओके. नेक्स्ट वी आर कमिंग ऑन द टर्म डेप्रिसिएशन.
आप सभी को पता है कि हम सभी अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, एंटरप्राइज में फिक्स्ड एसेट्स का इस्तेमाल करते हैं. कैन यू थिंक अबाउट सम फिक्स्ड एसेट्स? Yes, I think you can, because we have done that chapter, or we have done that topic of the assets. These are machinery, furniture, AC, है ना, motor cars which we are using for the transportation and all. That is all fixed assets जो हम more than one financial year के लिए इस्तेमाल करते हैं. ओके, लेकिन आपने देखा होगा कि ईयर आफ्टर ईयर जैसे जैसे हम अपनी मशीनरीज को यूज़ करते हैं, जैसे जैसे हम अपनी असेट्स वो फिक्स्ड असेट्स का इस्तेमाल करते हैं, उसमें कुछ ना कुछ टूट फूट होती है, और इस्तेमाल करते करते जो है उसकी मार्केट वैल्यू भी कम हो जाती है ना, टूट फूट के कारण, पैसेज ऑफ टाइम के कारण. और अगर हम उसको फिर सेल करना चाहें तो वो उस प्राइस पर सेल नहीं होती जिस प्राइस पर हमने उसे खरीदी थी. यस, तो when we are using the fixed assets, और मे बी फिक्स्ड एसेट्स की मशीनरीज जो हैं वो टेक्नोलॉजी उनकी बहुत पुरानी हो गई है, तो वो उस प्राइस से आप उसे मार्केट में सेल नहीं कर सकते हैं. दैट मीन्स यू कैन से फॉल इन द वैल्यू ऑफ एन एसेट मतलब फॉल इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड असेट्स विल बी नोन एज दी डेप्रीसिएशन. अब हम क्या करते हैं, हम तो खैर अपने कोई भी प्रोडक्ट अगर हमारी ऑर्गेनाइजेशन का है, हम यूज़ कर रहे हैं 5 साल 10 साल से, और हम उसको क्या सेल आउट करते हैं, तो ऑब्वियसली वो कम कीमत पर जाएगा. दैट इज़ नोन एज दी डेप्रीसिएशन. और ये इसकी हम प्रॉपर रिकॉर्डिंग करते हैं इन द बुक्स. ऐसा नहीं है कि उतने पैसे हमारे जो है हम उसको मशीनरीज को मगर कहीं ना कहीं वी हैव टू रिकॉर्ड इट समवेयर ना, वॉट एवर लॉसेज वी आर गेटिंग. तो दिस इज़ ऑल्सो द डेप्रिसिएशन जो हम बुक्स में प्रॉपर रिकॉर्ड करते हैं. दैट मीन्स फॉल इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स बाय यू कैन से बिकॉज ऑफ द यूसेज, बिकॉज ऑफ द पैसेज ऑफ टाइम, बिकॉज ऑफ द एब्सोलिसेंस. दैट मीन्स टेक्नोलॉजी से मशीनरी ओल्ड हो जाना, बाहर हो जाना. ओके, दैट इज डेप्रिसिएशन. नेक्स्ट वी आर कमिंग लॉस. ईजी टर्म है ना, सुनने में तो आता है कि इतना लॉस हो गया, मगर व्हाट इज़ लॉस बेसिकली? ठीक है, लॉस इज अ एक्सेस ऑफ एक्सपेंस ओवर द पीरियड ऑफ इट्स रिवेन्यू. रिवेन्यू क्या होती है? जितनी भी हमारी सेल्स हुई है ना, तो हमारी भी जो रिवेन्यूज़ हमारे पास आए हैं, सेल से जो पैसा हमारे पास आया है, और उसके लिए जो एक्सपेंसेस हुए थे उससे ज़्यादा अगर आप उसको देखें तो वो क्या कहलाया जाता है? लॉस. तो एक्सपेंसेस से ज़्यादा, ठीक है, जितने हमारे खर्चे हुए, हमें इतना पता नहीं था कि हमें पता है कि किसी प्रोडक्ट को बनाने के लिए कितनी कॉस्ट आएगी और उसके नॉर्मल एक्सपेंसेस क्या होंगे. एक्सपेंसेस ऑल्सो वी हैव डन. तो एक्सपेंसेस क्या होंगे, उससे ज़्यादा अगर अनएक्सपेक्टेड हो जाए तो वो क्या कहलाया जाएगा? लॉस कहलाया जाएगा. तो दीज आर कुछ सम टर्म्स जिसमें कन्फ्यूजन होता है कि भाई एक्सपेंसेस क्या है, लॉस क्या है. तो दिट शुड बी क्लियर इन योर माइंड बेटा कि लॉस क्या है? लॉस इज़ द एक्सेस ऑफ एक्सपेंस है. ओके, एंड व्हाट वी कैन टेक वन मोर थिंग. लॉस बेसिकली इट decreases the owner's equity. It is a broad term and includes loss incurred in its operating activities, money or money worth lost against which the firms receive no benefits. Okay, like you can take some example like goods lost in theft, okay, या due to fire, और you can say कि आप fixed assets को सेल कर रहे थे तो वो बहुत एक्सपेक्टेशन से बहुत कम प्राइस पर सेल हुआ, तो अगेन दैट विल बी द लॉस फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन. ओके, नेक्स्ट वी हैव इनकम. इनकम बेसिकली इट्स अ डिफरेंस बिटवीन द रेवेन्यू एंड द एक्सपेंसेस, है ना. हमारे जितनी भी सेल्स हुई और जितने एक्सपेंस हमारे हुए थे, उससे जो हमारे पास जो मोर फंड्स वी आर गेटिंग आफ्टर सेलिंग द प्रोडक्ट, दैट विल कम्स अंडर द income. We can read it, income is the profit earned during an accounting period. In other words, the difference between the revenue and expenses is termed as the income. Okay, let's suppose expenses मेरे हुए थे 50,000 के और revenue generate हुआ 65,000, तो 15,000 will be our income for that. Okay, now you will say then what is profit? अगर आप कहते हैं कि इनकम वही है तो प्रॉफिट क्या है? प्रॉफिट मीन्स इनकम अर्न बाय द बिजनेस फ्रॉम इट्स ऑपरेटिंग एक्टिविटी. डे टू डे एक्टिविटीज़ से जो हमें प्रॉफिट मिलता है, सेल ऑफ गुड्स, ठीक है, सर्विस रेंडर करना, सेल ऑफ गुड्स के थ्रू वॉट एवर वी आर गेटिंग, दैट विल कम्स अंडर दी प्रॉफिट. ओके, प्रॉफिट इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू बेसिकली दो प्रॉफिट होते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट एंड नेट प्रॉफिट. द टोटल प्रॉफिट विच वी आर गेटिंग
total profit between the revenue and the sales. Revenue from sales and the whatever the direct cost, that will come under the ग्रॉस प्रॉफिट. बट नेट प्रॉफिट क्या होता है? अगर आपके पास नेट प्रॉफिट इज द प्रॉफिट आफ्टर डिडक्टिंग ऑल एक्सपेंसेस फ्रॉम द टोटल रिवेन्यू. अभी हमारे दो तरीके के एक्सपेंसेस होते हैं, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट. दैट ऑल्सो विल डिस्कस लेटर ऑन. ओके, बट टिल नाउ वी हैव प्रॉफिट. टू टाइप्स ऑफ प्रॉफिट्स वी हैव, ग्रॉस प्रॉफिट एंड नेट प्रॉफिट. देन वी हैव गेन. अगेन कन्फ्यूजन, अरे इनकम, प्रॉफिट एंड गेन सभी एक जैसे लग रहे हैं, बट जो प्रॉफिट होता है बेटा वो रीअकरिंग नेचर का होता है. दैट मीन्स बार बार आप गुड सेल करते हो, बार बार प्रॉफिट हो सकता है. बट गेन अनएक्सपेक्टेड होता है, इरेगुलर नेचर होता है, नॉन रीअकरिंग मतलब रिपीट नहीं होता गेन. सेल ऑन लैंड पर आपको गेन हुआ, दैट मीन्स आपने सोचा नहीं था कि आप जो लैंड सेल कर रहे हो उस पर आपको गेन होगा, या फिर मशीनरी आपने सेल की तो एक्सपेक्टेशन से अच्छा आपको प्राइस मिला, दैट विल कम अंडर द गेन. आपने जो इन्वेस्टमेंट किए थे, आपने इन्वेस्टमेंट किए थे, आपने उसको इन्वेस्टमेंट को सेल कर दिया, आपको एक्सपेक्टेशन से अच्छा मिला. दैट मीन्स बार बार ऐसा नहीं मिलता. व्हेन यू आर एक्सपेक्टिंग मोर देन द प्रॉफिट. ओके, तो गेन इज द इंक्रीज इन द ओनर्स इक्विटी resulting from something other than the day-to-day earning from from irregular and non-recurring nature. For example, gain on sale of land, machinery and all. Okay, now basically it is a profit that arises from transaction which is not the operating activity. प्रॉफिट जनरेट होता है ऑपरेटिंग एक्टिविटी से, डे टू डे एक्टिविटीज़ से, लेकिन जो गेन होता है वो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ से जनरेट नहीं होता. दैट मीन्स हम हमेशा लैंड सेल नहीं करते हैं, हमेशा मशीनरीज को सेल नहीं करते हैं, मगर वेन एवर वी आर सेलिंग दीज फिक्स्ड एसेट्स एंड ओनली बिकॉज ऑफ दीज अनएक्सपेक्टेड प्रॉफिट वी आर गेटिंग, दैट विल कम्स अंडर द गेन. Now receipt, next one, this is the common term which we generally use in our daily life also, है ना. receipt मिलती है, तो whatever receipt is the basically जब भी आप goods and services सेल करते हो, है ना, तो receipt is the amount received or receivable for the selling assets, purchase or services. ओके, तो वेन एवर वी आर सेलिंग समथिंग, गुड्स एंड सर्विसेज, तो उसके लिए जो हम डॉक्यूमेंट मिलते हैं हमें, और बिल रिसीवेबल, या तो पैसा मिलेगा या मिल गया है या मिलेगा, दैट इज़ नोन एज द रिसीट. टू टाइप्स ऑफ रिसीट्स वी हैव, दैट इज़ रिवेन्यू रिसीट एंड द कैपिटल रिसीट. रिवेन्यू अगेन नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में, डे टू डे एक्टिविटीज़ में वॉट एवर वी आर गेटिंग, दैट इज़ रेवेन्यू रिसीट. इट इज़ द अमाउंट रिसीवेबल और received in the normal course of business. For example, amount received or receivable against sale of goods or rendered services. Interest on fixed deposit or investment. मंथली ईयरली आपको मिलता है ना, इंटरेस्ट मिलता है ना, वॉट एवर डिपॉजिट्स यू हैव डन, तो दैट विल कम अंडर वॉट, रिवेन्यू रिसीप्ट, क्योंकि एक साल के अंदर अंदर वॉट एवर रिसीप्ट यू आर गेटिंग नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में. कैपिटल रिसीट, दैट मीन्स वो रिसीप्ट अगेन जैसे कैपिटल रिसीट क्या है ना, मोर देन अ ईयर. ओके, इट इज़ अमाउंट रिसीव्ड और रिसीवेबल अगेंस्ट ट्रांजेक्शंस विच आर नॉट रिवेन्यू नेचर. दैट मीन्स नॉर्मल 1 ईयर कोर्स ऑफ बिजनेस में आपको रिसीट नहीं हो रही है, आपको 1 साल से ज़्यादा. फॉर एग्जाम्पल, अमाउंट रिसीव्ड और रिसीवेबल फॉर सेल ऑफ मशीनरी, कैपिटल आइटम पर आपको रिसीप्ट मिल रही है, दिस इज़ नॉट अ रिवेन्यू नेचर. तो जब भी फिक्स्ड एसेट्स या लॉन्ग टर्म नेचर के आइटम पर आपको कोई रिसीप्ट मिलती है, वो आपकी कैपिटल रिसीप्ट कहलाती है. फॉर एग्जाम्पल, अमाउंट रिसीप्ट और रिसीवेबल फॉर सेल ऑफ मशीनरी, बिल्डिंग, फर्नीचर, इन्वेस्टमेंट, दैट ऑल इज योर कैपिटल रिसीप्ट. ओके, next we have expenditure. Again, expenditure is the amount spent or liability incurred or acquiring assets, goods और services. उसको एक्वायर करने के लिए, किसको, जो अमाउंट आपने स्पेंड किया है असेट्स और गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज करने के लिए, ओके, वो एक्सपेंडिचर ही कहलाता है. दो तरीके के एक्सपेंडिचर होते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर. अगेन, कैपिटल एक्सपेंडिचर, इफ़ यू आर एक्सपेंडिंग मनी ऑन फिक्स्ड असेट्स, मशीनरी, परचेज ऑफ फर्नीचर and purchase of machinery, purchase of land, purchase of building and all, that all will come under the capital expenditure. It is an expenditure incurred to acquire assets
or improving the existing assets, you can say, which will increase the earning capacity of the business. Okay, so these all assets help us to increase the earning capacity of the business, and these all are basically the fixed assets. So basically all the expenditure which we are doing on acquiring of machinery purchase or business acquiring of machinery, or you can say furniture, land, building, that all will come under the capital expenditure. Next we have the revenue expenditure. Again, normal course of business में within the accounting period, whatever expenditure we are facing or expenditure we are paying, that all will come under the revenue expenditure. Like you can say we are paying salary, we are paying rent, we are paying electricity charges, we are paying cost of goods sold, whatever product we are making उसकी cost आ रही है. That is the normal course of business में आपकी जो भी activities चल रही हैं उस पर जो expense हो रहा है वो revenue expenditure कहलाता है. Okay, next term we have, that is discount. बड़ा नॉर्मल टर्म है, आप सबने सुना होगा डिस्काउंट के क्या है कि वो कंपनी जो है ऑफ सीज़न में डिस्काउंट देती है ना, होता है ना, एट द एंड ऑफ द सीज़न डिस्काउंट प्रोवाइड करते हैं. क्या होता है डिस्काउंट? बेसिकली इट इज़ अ रिडक्शन इन द प्राइस ऑफ गुड्स और फ्रॉम द अमाउंट टू बी पेड टू द कस्टमर बाय द एंटरप्राइज. हमें डिस्काउंट मिलना चाहिए, दैट मीन्स इट इज़ अ रिडक्शन इन द प्राइस ऑफ द गुड्स. हमें ऐसा लगता है कि हमारी जो गुड्स है ना उसकी प्राइस रिड्यूस हो गया है ना, तो अच्छा है, हमारे लिए बेनिफिट है. जो खरीद रहा है उसके लिए बेनिफिट है, जो सेल कर रहा है उसके लिए एक्सपेंसेस माने जाएंगे, लॉसेस माने जाएंगे कि उतना लॉस उसको हो गया. वाई? क्योंकि वो उतना प्राइस कम करके आपको दे रहा है प्रोडक्ट. दो तरीके के होते हैं डिस्काउंट, दैट इज़ ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट. ट्रेड डिस्काउंट बेसिकली ये प्राइस रिडक्शन होता है बाय द सेलर, जो सेल कर रहा है प्रोडक्ट. और कब देते हैं ये? जब लार्ज अमाउंट ऑफ क्वांटिटी खरीदता है कोई. ठीक है, तो अगर परचेज़ किया जा रहा है गुड्स इन बल्क, ओके, वो कहते हैं कि ठीक है, अगर आप 100 क्विंटल नहीं या 150 क्विंटल लोगे तो आपको हम ट्रेड डिस्काउंट प्रोवाइड करेंगे. तो इट इज़ अ रिडक्शन इन द प्राइस बाय द सेलर टू द परचेजर of goods when they buy goods in certain quantity or value. Okay, so this is the trade discount. Who is providing the trade discount? Seller providing the trade discount to the purchaser. But motive is what? Motive कि certain amount of goods वो खरीदे. Okay, next we have the cash discount. नाम से ही पता चल रहा है कैश पेमेंट को मोटिव बढ़ाने के लिए आप कहते हो अपने जो है परचेजर से, गुड्स के परचेजर से, इफ़ यू आर गिविंग मी टोटल कैश यू आर गिविंग मी, आई गिव यू कैश डिस्काउंट. क्या बेनिफिट होता है इससे ये बेनिफिट होता है कि फ्यूचर में बैड डेब्ट्स होने का खतरा ख़त्म हो जाता है, तो टाइमली पेमेंट मिल जाए, अमाउंट ड्यू ना रहे, इस वजह से कैश डिस्काउंट दिया जाता है. कैश डिस्काउंट इज़ अ डिस्काउंट अलाउड फॉर टाइमली पेमेंट ऑफ ड्यू अमाउंट, कि आप अभी पेमेंट कर दोगे तो विल गिव यू कैश डिस्काउंट. ट्रेड डिस्काउंट को वी डोंट रिकॉर्ड इन द बुक्स, बट कैश डिस्काउंट को हम बुक्स में प्रॉपर रिकॉर्ड करते हैं. Okay, trade discount की calculation will do in the next classes, but till now हमें जो है क्या आप इसको रिकॉर्ड करेंगे बेसिकली कैश डिस्काउंट को. तो अभी के लिए मैं आपको ये बता दूँ, सेल्स आर रिकॉर्डेड एट नेट वैल्यू. नेट वैल्यू का मतलब होता है सेल्स माइनस ट्रेड डिस्काउंट ऑलवेज. तो परचेजेस आर रिकॉर्डेड बाय द परचेजर्स अगेन ऑन द नेट वैल्यू. तो आप सेल्स और परचेज जो रिकॉर्ड करते हो वो नेट वैल्यू पर करते हो. और नेट वैल्यू का क्या होता है? नेट वैल्यू जो सेल कर रहा है वो कैसे रिकॉर्ड करेगा? सेल्स माइनस ट्रेड डिस्काउंट. और परचेजर कैसे रिकॉर्ड करेगा? परचेजेस माइनस ट्रेड डिस्काउंट. तो बेसिकली हम इसको, ये तभी अलाउ किया जाता है जब एक सर्टेन क्वान्टिटी आप परचेज कर रहे हैं. आई होप इट इज़ क्लियर टू यू ऑल. So please make proper notes for this chapter. Now we are going to finish this video. Thank you.